Now, this was a brief introduction video about our company, and now I would like to hand over the session to our expert. So, Andesh sir, you can start the session now. Thank you very much. Hey everyone, Thank good you, sir. evening. Good evening, everybody, and welcome all. I'm audible to everyone. Yes, sir. Thank you. Okay, happy Monday to everyone. Almost we have around 25 people. So, guys, just quickly let me know on the chat how many are fresher out of you all, and how many are working professional. And then slowly, after some question and answers, we will slowly start the demo sessions and we'll discuss about the topics we're going to discuss during the entire course. All right. What about others? Let us make the sessions interactive, guys. Okay. Cool. So I guess like most of the people joined today on the session are working professional. You all are like, working professionals. And let me also know on the chat box quickly, everyone is comfortable with Hindi, or shall we continue in English only? If anyone is there who have, you know, any sort of problem in understanding the English. English only. So there are few people who are only comfortable with English. Okay. And that's the biggest challenge I faced during the sessions, the language issue. All right. Not a big deal, guys. What we'll be doing, okay, I'll be using both the languages, and basically the thing is like, wherever you find like you're not able to understand the things, so things are not going clear to you, you are open to put your doubts, queries on the chat box, and I'll be helping you. I'll try to resolve each of your query. अगर किसी को कोई language का issue होता है, okay, that, see, that's all enough. Okay, that's good, fine. अगर किसी को English में problem है, so just आराम से आप अपना query डाल देना in chat, and I'll pick it up, and I'll be continue in English. Okay, and wherever I think like I just need to make some more clarification on that topic or something, I'll turn it on Hindi as well. So it's just a demo session, so not an issue, not going to be a big challenge, big issue. Okay. So let us first start like, what are the topics we're going to cover in this course? Okay. And why should you opt this, right? So the course topics which we'll be learning in this entire course, in this entire month, are, this sequence will be discussing about the survey part, right? How to make use of how to make use of instruments, right? We'll not be covering the total station because that's not possible in online classes, right? But auto label definitely we'll see like how to work with auto label, कैसे RL लेना है, how to take RLs, how profile leveling किस तरीके से होती है, right? And how you will do different kinds of survey and all. So whatever you have, if you are a fresher, whatever you have learned in your college, or if you are a working professional, you are a site engineer, not a survey professional, but if you are a site engineer or in any other thing, other part in the construction industry, you must should know that part of survey. उतना सर्वे आपको आना चाहिए, वो सारी चीजें हम बेसिक्स क्लियर करेंगे सर्वे में.
and then we'll move towards the layout. That's a very important part, because when we jump into the industry, we really miss this part, right? हम किसी भी construction में अगर project में join करते हैं तो कई बारी हमको starting से देखने को नहीं मिलता है. So we'll also be covering the layout plan, layout part, like किस तरीके से एक किसी कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसका किस तरीके से साइट लेआउट प्लान होता है, उसके हिसाब से कैसे आपको साइट में लेआउट करवाना है. एंड देन we will have a complete case study on estimation and quantity survey, right? So detail part जो भी हमारा होगा estimation and quantity survey का, okay, एक complete case study लेंगे. I think sound is okay for everyone. Yes, sir. Okay, Ashish, I think like there's some issue at your end. Not a problem. And then we'll consider a complete case study on quantity estimation, right? So we'll be doing the complete quantity estimation of project, building project basically, right? उसका complete quantity estimation करेंगे IS code 1200 के हिसाब से, different IS code 1200 के जो भी parts हैं, जो major parts है, right? Because there are 28, 29 parts, so we cannot cover each and everything, right? तो जो major part है जो day to day life में आप use करोगे, है ना? तो उन parts को cover करेंगे IS 1200 के मोड ऑफ मेजरमेंट, उसके हिसाब से किस तरीके से आपको एस्टिमेशन करना है, हाउ टू प्रिपेयर BOQ, राइट, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्टकट टेम्पलेट्स, जो कि अभी कुछ देर में हम देखने जाएंगे, राइट. ये सारी चीजें हम क्वांटिटी एस्टिमेशन में कवर करेंगे. उसके बाद किस तरीके से रेट एनालिसिस करना है, DAR डॉक्यूमेंट के हिसाब से लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रेट एनालिसिस होता है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बार बेंडिंग शेड्यूल. तो जो केस स्टडी जैसे हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे, सेम वही केस स्टडी उसी तरीके से हम बार बेंडिंग शेड्यूल में भी कर रहे होंगे BBS में. एंड एट द फाइनल टाइम वी विल बी लर्निंग अबाउट द बिलिंग्स के बारे में, जो भी बेसिक्स हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ RA बिल्स होते हैं, कैसे RA बिल का प्रिपेयर होता है, SOP सर्टिफिकेट्स ऑफ पेमेंट्स वगैरह किस तरीके से बनती हैं, राइट, हाउ टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन बिल्स एंड ऑल, राइट, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, मोबिलाइजेशन रिकवरी कैसे होती है, हाउ टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, जो बिलिंग इंजीनियर का मेजर पार्ट है, वो चीजें भी हम कवर कर रहे होंगे. विल बी कवरिंग दोस पार्ट एज वेल, राइट. सो दीज आर लाइक हाई लेवल topics written out here which we'll be covering into the course. And if you just want to get the complete detail about the course, you can contact to the Proteni and they'll be providing you the detailed syllabus of the course as well. Okay. Now let us discuss one by one topics, and we'll at the end we'll be taking some short sessions, or we'll be covering some short topics. Okay. So before moving, let us see like what we'll be doing in survey. Okay. All right. So for the survey, we'll be discussing like what are the different types of survey, right? And what are the different instruments which we are using for the survey, right? Auto label, किस तरीके से उसकी रीडिंग्स लेनी है, किस तरीके से स्टाफ रीडिंग लेनी है, राइट? एंड देन हाउ टू टेक RLs, ओके. ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. और उसके बाद जो इस सबको सीखने के बाद जो रियल एप्लीकेशन होता है, व्हाट यू गोना डू व्हेन यू आर एट द फील्ड, राइट? देन हाउ टू टेक RLs, कैसे करेक्शन अप्लाई करना है, राइट? प्रोफाइल लेवलिंग किस तरीके से करनी है, राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपने सीखे हैं. इस तरीके से अगर किसी जगह की प्रोफाइल लेवलिंग करनी है, कैसे करेंगे, प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है, राइट? जब आप अगर किसी हाईवे या किसी ड्रेन का काम करते हो तो इस तरीके से आप बनाते हो, राइट? एग्जिस्टिंग सरफेस जो भी होता है, एग्जिस्टिंग जो RLs होते हैं वो, और फिर जो आपको फॉर्मेशन लेवल चाहिए होता है, किस तरीके से उसकी सर्वे करके कहाँ से ये सारी चीजें आती हैं, राइट? देन we'll be discussing about the contour, किस तरीके से कंटूर मैपिंग की जा सकती है, राइट? कैसे होती हैं सारी चीजें. So these are the basic parts of survey which each and every civil engineer must should know, right? At least when you are when you are in a field, you must should know how to operate an auto label machine, right? Not necessary कि आपको बहुत ज्यादा टोटल स्टेशन के बारे में पता हो, but at least you should have sufficient knowledge कि ऑटो लेबल मशीन किस तरीके से चलानी है. तो ये पार्ट है जो हम कवर कर रहे होंगे सर्वे में. उसके बाद we'll move towards the layout, right?
कि लेआउट किस तरीके से करना है आपको, सेंटर लाइन लेआउट, राइट, डिफरेंट देखेंगे अलग अलग सिनारियो में किस तरीके से आपको लेआउट करना है, परफॉर्म करना है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, राइट। इफ यू डोंट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ आपको मेजरमेंट टेप दे दिया जाए, है ना, और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट, गुनिया उनिया कुछ भी नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस सिचुएशन में कैसे आप लेआउट परफॉर्म करोगे उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, we'll be discussing about different types of earthworks and all items, right, कितना स्लोप रूल क्या होता है, राइट, और कितना आप एक्सकवेशन जब आप कर रहे होते हो, ठीक है, फुटिंग के लिए, तब कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो भी हैं, ओके, इन सब का डिस्कशन करेंगे इन द सर्वे एंड लेआउट। ओके, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स quantity estimation, and for quantity estimation we'll be covering okay, these are going to be our drawings, ये हमारी drawings हैं, तो complete case study हम cover करने वाले हैं, so we'll be using these drawings, and this is a center line layout plan. Okay, these are the details for the foundations and all everything, so these all drawings are important. We'll learn like how to read the drawings को किस तरीके से पढ़ना है ना, उसके बाद इन ड्राइंग से एस्टिमेशन किस तरीके से करना है। यू हैव ग्राउंड प्लान, प्लिंथ फिलिंग प्लान, ओके, सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है, स्लैब प्लान है, राइट, then you have details for tiles and flooring, other things, right? So after reading आपको ये drawings मिलती हैं at the initial stage of the project and you are responsible for doing the quantity estimation, right? How you prepare this kind of BOQ, right? So ये BOQ है, ये BOQ है, bill of quantity, which is an important document in the tendering stage. एक important document है जो define करता है किसी भी project के scope को, entire scope को, है ना। अगर आपको एंटायर स्कोप जानना है किसी प्रोजेक्ट का, देन यू मस्ट शुड हैव द डिटेल बीओक्यू, राइट। उस बीओक्यू से आपको पता चलेगा व्हाट हैपेंस इन बीओक्यू। ये जो क्वांटिटीज आप एस्टिमेट करते हो ड्राइंग से, वो यहाँ पर लिखी होती हैं। ये रेट्स फॉल्ट रेट्स यहाँ पर लिए गए हैं अभी फिलहाल के लिए, दीज आर टेकन फ्रॉम एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट, ओके। हर एक पीडब्ल्यूडी स्टेट पीडब्ल्यूडी का, राइट, और जो सीपीडब्ल्यूडी है उनका एसओआर डॉक्यूमेंट होता है, वहां से रेट्स उठाए गए हैं, बट दिस डज नॉट हैपेंस इन रियल, राइट। These BOQ are being prepared and they are floated into the market so that other contractor can fill out the rates here. जो other contractors होंगे वो अपने rates यहाँ पर quote करेंगे and then the evolution takes place, और वहां पर जाकर के क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, if you are if you are eligible according to the criteria which has been given over there financially or technically, आप अगर sound करते हो, then the contract will be awarded to you and whatever the rates you have quoted at that point of time, राइट, उस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अभी समझने के लिए ये क्वांटिटी है, ये रेट्स हैं, इस तरीके से टोटल अमाउंट निकल के आता है, जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स होगा उसके लिए, एंड फाइनली दिस इज द total estimated cost of this entire project comes out, right? So this is a sheet which is called as BOQ, sorry, okay, and this is an estimation sheet. ये एस्टिमेशन सीट है एक एक चीज को, है ना, साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। You'll be getting each and everything, Vinayak, don't worry, each and everything means like all the study material which is being shared, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे पीपीटी हो, या कुछ भी अदर चीज मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप एक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है, साइट क्लीनिंग होती है, एक्सकवेशन होता है, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग कंक्रीट, है ना, फुटिंग शटरिंग, ओके, एंड देन रेशियल के लिए आप कैलकुलेशन करते हो, बैक फिलिंग होती है, सिंगल लाइन ब्रिक वर्क होता है, ग्राउंड बीम की कैलकुलेशन होगी, कंक्रीट की, शटरिंग की, राइट। ईच एंड एवरी डिटेल अगर आप यहाँ पे नीचे जाते जाओगे, सारी डिटेल जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काम करती है उन सब का एस्टिमेशन हो रखा है डिटेल में। अब ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये जाती है बीओक्यू में। That's how the things work. तो सबसे पहले ड्राइंग्स की हेल्प से आपको पढ़ोगे अब उन ड्राइंग्स को, उन ड्राइंग्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये एस्टिमेशन शीट बनाओगे, एस्टिमेशन करोगे डिटेल में, और यहाँ से क्वांटिटी पिक करके इस बीओक्यू में लेकर के जाओगे। So this is the process how the things work. Clear to everyone? Okay. What is the deduction rule? अब estimation करना is easy, right? Estimation is quite easy, right?
Yeah, I'll explain just. Dilip, whatever the queries, I'm just noting down. Okay, if you just want to understand sand filling, I'll just explain in a minute, right? So the thing is, okay, the thing is, like, estimation is easy. If you'll see the sheet, kya kiya gaya hai? You have length, width, height, right? You have find out the volume, right? You have length and width. You have find out the area. Okay, so जो भी आपको निकालना है, most of the time you will be dealing with the area and the volume of the things, right? It's a basic mathematics. But एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हो या आप जब बिलिंग कर रहे होते हो, सो एज एन इंजीनियर डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपको आईएस कोड 1200 मोड ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से बिलिंग करनी है, एस्टिमेशन करना है, राइट? So this is a major part which comes into a role, right? These are important part of the IS code 1200, right? ये जितने भी कोड आप देख रहे हो, IS कोड 1200 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 12, प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क, राइट, ब्रिक वर्क, एवरीथिंग, पेंट, प्लास्टर, इन सब के लिए. So these are the codes, right, which define some important parameters, or you can say the important rules, right? जब जैसे आप प्लास्टर करते हो, प्लास्टर के लिए डिडक्शन रूल होता है, which is a very important question for the interviews as well, right? पीसीसी के ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं, उस वो भी आप लिखो, फिर उसके बाद I'll just take your questions. Okay, now when you do the plaster, right, तब आपको कुछ डिडक्शन रूल फॉलो करने होते हैं, है ना? उसके हिसाब से क्वांटिटीज का एस्टिमेशन होता है या क्वांटिटीज कैलकुलेट होती हैं. सो an easy approach is what, कि as a quantity surveyor most of the time you will be dealing with the area and the volume. बट आईएस कोड को जानने की बात आती है, आईएस कोड 1200 के हिसाब से एस्टिमेशन करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ रूल्स कंडीशंस हैं जो एज एन क्वांटिटी सर्वेयर और एज अ बिलिंग इंजीनियर यू मस्ट शुड नो, है ना? क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से बिलिंग होगी, उसके हिसाब से एस्टिमेशन होगा, उसके हिसाब से चीजों का डिडक्शन होगा, राइट? ओके, सो दिस all estimation will be doing in reference to the IS code 1200, right? So there are different parts. हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे. जब हम कंक्रीट की क्वांटिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे तो कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम प्लास्टर की क्वांटिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे तो हम प्लास्टर के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन, राइट? नाउ another thing linked to this is, if you will see on this estimation sheet, right, हमने कंक्रीट कैलकुलेट की है, हमने शटरिंग कैलकुलेट की है. why we haven't considered, right, why we haven't considered reinforcement? हमने रेनफोर्समेंट यहाँ पर क्यों नहीं कंसीडर किया? और दूसरी चीज, अगर रेनफोर्समेंट कंसीडर नहीं किया तो if I'll say, like, for a beam, let's take an example of a beam. Okay, this is how the cross section looks like. So if I am calculating the total quantity of a beam, okay, do I need to subtract these reinforcement part? जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा कि कितनी कंक्रीट लगी होगी, तो यहाँ पे तो कंक्रीट नहीं लगी है, यहाँ पर तो रेनफोर्समेंट लगा है. तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अ कंक्रीट? क्या मैं इसका डिडक्शन करूंगा, इस रेनफोर्समेंट पार्ट का? गिव मी एन आंसर. ओके, बाकी लोग? Okay, I want answer from everyone. Okay, so Dilip has given the correct answer, right? जिसने भी no बोला है, he has given the correct answer. You will not deduct the volume covered by reinforcement. Is this clear to everyone?
यस, करेक्ट। अभी यहाँ पर जो आंसर आया आपके पास वो भी सही है। इसके पहले दिलीप ने नो बोला था एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द IS कोड 1200, volume of the reinforcement is not deducted. You will not consider this. Okay? इसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप क्वांटिटी इसकी निकाल रहे होगे तो जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी डेप्थ होगी, सॉरी दिस इज एन लेंथ एंड दिस इज एन डेप्थ एंड दिस इज एन विड्थ, तो जो ये 3 डायमेंशन होंगे, सिर्फ इन 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करके जो ओवरऑल वॉल्यूम आएगा, राइट, that will define the quantity of concrete for this particular beam. Make sense to everyone? ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तब पता चलेंगी जब आप कैलकुलेशन के अलावा एक अलग नजरिए से देखोगे क्वांटिटी एस्टिमेशन को, और जब आप सीखोगे, राइट। सो यू नीड टू नो ऑल दोज बेसिक रूल्स व्हिच आर गिवन इनटू द IS कोड 1200। उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना चाहिए। ओके, जस्ट सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, ओके, एंड वी विल आल्सो बी कवरिंग दैट। ओके, when you are जब आप एक पिट खोदते हो, है ना, फुटिंग बनाने के लिए, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा। सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज एन फुटिंग, साइज इज 1500 क्रॉस 1500। ओके, नाउ जो आपका पिट होगा, और मान लेते हैं जो टोटल डेप्थ है वो 2 मीटर की है, ठीक है। अब मान लेते हैं, सॉरी 2 मीटर बोल, ठीक है, हाँ, सपोज कर लो 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे ही कुछ है। सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द पिट which you will excavate? Is it going to be equals to 1500 or less than 1500 or more than 1500? Equal, less or more? More than 1500. What's the reason? What's the reason why we should? Okay, someone has said 100 mm. So Shri Prasad said PCC. PCC का कोई कनेक्शन नहीं है सर उससे। Okay. So people who are saying more, that's correct, right? And the reason is what? You should know the reasons behind each and everything, है ना? क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हो या बार बेंडिंग शेड्यूल करते हो, आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों, राइट? एक तो आप अगर यहाँ पर इसको एकदम सटा दोगे, चिपका दोगे, इसका मतलब है फिर शटरिंग कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पर जब कंक्रीटिंग करनी है आपको तो, राइट? वर्कमैनशिप डिस्टर्ब होती है, लेबर कहाँ पे जाकर के बैठ के क्या काम करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना? So these are some reasons why यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ता है। You will give some certain space, है ना? और वो स्पेस कितना होता है ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे, है ना? कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी सबको नहीं आ रही क्लियर? बार हम ओवरगो कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच विल बी कवरिंग, एंड देन वी विल टेक सम स्मॉल टॉपिक्स जिससे आपको समझ करा कैसे जाता है ना? उसके बाद आज जो मैं शॉर्टकट टेम्पलेट्स की बात कर रहा था, राइट? तो दीज आर लाइक शॉर्टकट टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेयर केस के एस्टिमेशन के लिए एक शॉर्टकट टेम्पलेट्स बनी हुई है। नाउ along with this course you'll be getting benefit what कि आप estimation कर रहे हो, आप estimation board या copy में नहीं कर रहे हो, you are doing the estimation in Excel. So people who are not aware of like how to work on Excel, you'll be getting an hands-on practice on Excel as well. तो आपको पता चलेगा कि यार Excel का किस तरीके से यूज करना है, how to use Excel, किस extent तक हम Excel में यूज कर सकते हैं, right?
अब यहाँ पर शॉर्टकट टेम्पलेट बनी हुई है कि बार बार अगर आपको सेम चीजों का क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है या कुछ भी करना है, यू डोंट नीड टू पुट ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, यू जस्ट फिल डाउन दीज इनपुट वैल्यूज और ये ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट निकाल के दे देगा कि इस टेयर में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग से निकालनी है, इनकी वैल्यूज डायमेंशंस रख देने हैं और ये खुद ब खुद ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा इस स्टेयर केस को बनाने में, राइट? सो दीज आर सम शॉर्टकट टेम्पलेट्स जो कवर कर रहे होंगे in the course, right? And after this क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के बाद क्या, क्वांटिटी एस्टिमेशन के बाद हमको क्या समझना है, रेट एनालिसिस, राइट? रेट एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा? फॉर दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंट DAR, ओके? I'll also share the labor productivity, labor calculation sheet जिससे आपको easy होगा. This is a DAR document. Older version है 2019 का. You can get the latest copy of this by Google. आप Google में आपको जा करके टाइप करना है, you'll get the latest copy. अब जो लोग हाईवे वाले हैं, अगर हाईवे बेसिकली हाईवे इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड हियर, बिल्डिंग की बात करेंगे हम, तो हाईवे में अगर आपको इसी तरीके से चाहिए DAR तो यू कैन सर्च इट फॉर हाईवे एज वेल. ये जो है ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए. तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक टाइप ऑफ वर्क के लिए, राइट, आपको रेट एनालिसिस किया हुआ है नीचे. ये देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ओके, यू शुड नो अबाउट दीज कोफिशिएंट्स. दीज आर कॉल्ड एज लेबर कोफिशिएंट्स, है ना? दीज आर कॉल्ड एज लेबर कोफिशिएंट्स. Okay, these labor coefficients helps you to calculate the total quantity of labor required. Okay, टोटल कितनी लेबर की क्वांटिटी चाहिए होगी उसके बारे में आपको हेल्प करते हैं वो चीज एस्टिमेट करने के लिए. लेट्स से यू आर डूइंग अ रेट एनालिसिस. टेल मी लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसीडर व्हाइल डूइंग अ रेट एनालिसिस. क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको रेट एनालिसिस करने टाइम ध्यान रखने चाहिए? अब अगर आपको कोई बोलता है कि यार रेट एनालिसिस करना आपको मैं सिखा दूंगा, तो रेट एनालिसिस कम्स विद एन एक्सपीरियंस. एंड रेट एनालिसिस का कोई एक वे पर्टिकुलर एक वे नहीं परफॉर्म, एक पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और रेट एनालिसिस हो जाएगा. बिकॉज आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर सबका रेट एनालिसिस आप निकलवाओगे, you'll you know make 10 people to sit down and do the rate analysis for any kind of work, answers will be 10, answer will be different for all those 10 people, believe me, right? अगर ऐसा होता तो सबको ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, है ना? कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही को अवार्ड होता है ना. तो रेट एनालिसिस भी अगर आप किसी से करवाते हो तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आंसर आएगा. ईच एंड एवरी पीपल विल हैव देयर ओन आंसर्स, राइट? डिफरेंट आंसर्स बेसिकली. So you must should have a clarity on like what to be considered and what not to be, right? And then the second part comes on कि हाँ कितना परसेंट क्या लेना है ना? लेबर की क्वांटिटी कहाँ से निकली, क्या लेने. So just give me an parameters like what are the parameters you should consider while doing the rate analysis. Answer for that. And this is how we'll be doing the rate analysis for paint, whitewash, putty, for tiles work, right? For brick work. These are all the things which we generally consider, right? For the brick work, right? For the plaster, for the concrete, right? So these are all the topics like inside the rate analysis and how to calculate the total number of labor requires and all. So labor coefficients is an important thing. Okay. Give me an answer, guys. No one? I'm saying like what are the different factors which you should consider, or like what are the different things you should consider while doing a rate analysis. Like let me give an example. आप labor consider करोगे, material consider करोगे, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं
कौन से उनसे कंपोनेंट है जो रेट एनालिसिस lead and lift is another thing, right? That's another part. Labor T charges, लेबर टी चार्जेस ऐसा तो कुछ नहीं कैलकुलेट किया जाता है जब आप किसी बीओक्यू को फिल करने के लिए so these are all like the basic things which are जो लोग आप लोग कैलकुलेट करा रहे हो these are like you can say like overhead expenses सीधा सीधा right आप overhead expenses बोल सकते हो अब ऐसा तो कॉपी पेन पेपर का भी खर्चा आएगा है ना काम कर रहे हो अगर किसी क्लाइंट के लिए तो these all comes under the overhead expenses है ना तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करते हो तो उसके अंतर्गत आ जाता है ठीक है अदर देन दैट आपका लेबर हो गया लेबर चार्जेस हो गया मटेरियल कॉस्ट राइट वेस्टेज राइट मटेरियल ओके 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 क्वाइट गुड राइट quite good contractor profit right overhead expenses water electricity charges right ये सारी चीजें हैं जो आप जनरली कंसीडर करते हो वेस्टेज हो गया आपका है ना या कोई अदर आपका मशीनरीज लग रही है उस मशीनरीज का चार्जेस होगा राइट सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच कम्स अंडर द रेट एनालिसिस पार्ट है ना अगर इसके अलावा कोई अदर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई अदर टाइप का वर्क है और उसमें कोई और भी चीज आनी है देन यू विल कंसीडर दैट टू like few things which you should be considering while doing the rate analysis. Yeah, water and electricity I told. Okay. Okay. And after that, the part which comes up is billing. Sorry, bar bending schedule. Bar bending schedule. We'll be doing a complete case study on the bar bending schedule as well. है ना bar bending schedule में भी हम सारी चीजें देख रहे होंगे. Okay. So these are like all the drawings जो हमने estimation किया है ना जो हमने estimation किया वो ड्राइंग्स तो रहेंगी उसके अलावा ये जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स आपको दिख रही हैं ये सारी रेनफोर्समेंट डिटेल्स होंगी और इससे आप बार कर रहोगे तो ऐसा आपने एक्सेल शीट बनाया था क्वांटिटी एस्टिमेशन करने के लिए वैसा ही एक्सेल शीट बनाओगे बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए भी अब यहाँ पर डिटेल में बीबीएस का कैलकुलेशन होगा फॉर फुटिंग फॉर कॉलम फॉर बीम सॉरी एंड फॉर द स्लैब्स एंड ऑल राइट तो इस तरीके से बीबीएस का कैलकुलेशन होगा बार बेंडिंग शेड्यूल का ओके दिस पार्ट ओनली और यहाँ पर भी हम शॉर्टकट टेम्पलेट्स बना रहे होंगे कि लेट्स सपोज हमें स्टीरअप का कैलकुलेशन करना है वी डोंट नीड टू गो अगेन एंड डूइंग द थिंग्स है ना सिर्फ एक एक्सेल शीट बनाई वहां पर अगर मेरे पास 4 लेग स्टीरअप है उसका शॉर्टकट टेम्पलेट बना हुआ है मैं गया मैंने लेंथ डाली विड्थ डाली डायमेंशंस डाले और मेरे पास सीधा सीधा कैलकुलेशन निकल के आ गया कटिंग लेंथ निकल के आ गई तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बार बेंडिंग शेड्यूल है ना अगर मैं बोलता हूँ कि आपको यूनिट वेट का फॉर्मूला पता है या नहीं है who knows the formula for unit weight tell me सबको आता होगा but I just want to hear okay so in the bar bending schedule part right d square upon 162 this is the formula right this is the overall derivations and all we'll be learning कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करना सिर्फ नहीं लाइक यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द लोड्स क्या लोड्स हैं if you are providing a top extra or maybe the bottom extra then what is the importance of that क्यों कर रहे हैं right so in that sense we will be learning the bar bending schedule कि हमारे पास क्यों भी आंसर होना चाहिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं although you are not an structural engineer but you should know like what is over reinforcement under reinforcement why we should provide top extra bottom extra अगर यहाँ पर क्रैंक होता है तो क्यों होता है क्यों देते हैं क्रैंक बार एंड ऑल एवरीथिंग so in that scenario we'll be learning for the footings
for the pile foundation, for the different types of stirrups, for the columns, for the beams, different scenarios of beams, right? Slabs, right? Chairs, staircase, right? So these part and chhajja and all, so ye sare parts will be covering, you know, while studying about the bar bending schedule. And bar bending schedule करने के साथ साथ हम एक्सेल शीट भी मेंटेन करेंगे जैसा कि हमने की थी, है ना? जैसा कि क्वांटिटी एस्टिमेशन में किया, सेम उसी तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल में भी एक्सेल मेंटेन करेंगे. एंड यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड अ कंप्लीट नोट फॉर क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड वीवीएस, राइट? क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए इस तरीके से पूरा एक बेसिक नोट्स होगा जो जो जिसमें बेसिक चीजें भी होंगी, लाइक दीज आर बेसिक थिंग्स लाइक क्लियर कवर कितने होते हैं, एमएक्स डिजाइन रेशियो क्या होता है, राइट? फॉर्मवर्क कितने दिन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक कंप्लीट प्रोसेस, राइट? ऐसा होता है, राइट? डीआर क्या होता है, किस चीज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो कितना करना चाहिए बेसिकली. जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था सैंड फिलिंग के बारे में. सो सी, सैंड फिलिंग इज प्रोवाइडेड जस्ट as a starting after the excavation. It have following benefits. So these are like the benefits to avoid vibration, right? और एंटी टर्माइट, ठीक है? और इस कारण से वी जस्ट प्रोवाइड द सैंड फिलिंग एंड दिस इज द थिकनेस 4 से 8 इंच, है ना? तो अबाउट द पीसीसी, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस फाइल में देखने को मिल जाएगी फॉर एन इंटरव्यू प्रिपरेशन. ओके, एंड आफ्टर दैट we'll be moving towards the billing part, right, which is also quite important, right? We'll be learning about, you know, how to provide, how to prepare a DPR. वो भी सीखेंगे किस तरीके से एक डिटेल DPR आप बना सकते हैं. लेबर प्राइस एस्केलेशन बेसिकली क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे प्राइस एस्केलेशन होता है, चेंज ऑर्डर क्या होता है, कब किस किस कंडीशन में होगा, सब्स्टिट्यूट आइटम क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आइटम क्या होते हैं, राइट? सिक्योर एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस, ओके, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं जो, सारी चीजें, टाइप्स ऑफ बिल, राइट? So these all things will be learning in the billing classes. And reconciliation क्या होता है, material reconciliation क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है ना? सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीजें ऐड होती हैं उसमें, कैसे सारी चीजें, कैसे एक आरए बिल पूरा फ्लो होता है, राइट? कैसे पूरी प्रोसेस होती है. मोबिलाइजेशन रिकवरी जो आप सुनते हो, मोबिलाइजेशन रिकवरी की किस तरीके से आती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, टेंडर में जो क्लॉज लिखी होती है उसके हिसाब से किस तरीके से हम जानते हैं. Now what is the need of knowing कि like mobilization recovery कितनी होगी, इस चीज को जानना क्यों जरूरी है? Anyone? You can post your answer. What is mobilization advance if you have heard about this, and why, like, you know, why it is important to know कि कितना mobilization recovery होने के बाद पैसा हमको मिलने वाला है आरए बिल से, उसके बारे में पता होना क्यों जरूरी है हमको. If anybody wants to say something on that. Yes, you will be provided a certification. Duration of the course will be 1 month. Drawings and each and everything will be provided if you'll join the course. Okay, Vinay. Mobilization of the laborers for the starting project, that's another thing. Mobilization का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, if you have been awarded a contract, then the client will say, okay, we are giving you this particular amount, let's suppose 10% of the overall cost of the contract. ये 10% पैसा लो, है ना, और आप मोबिलाइज करो साइट पे. जस्ट पुट डाउन योर लेबर्स, पुट डाउन योर मशीनरीज. अगर वहां जाकर के कोई प्लांट लगाना है आपको, प्लांट लगाओ, है ना, ताकि आप काम स्टार्ट कर पाओ. और जब आप मोबिलाइज कर जाओगे तब आपको वर्क ऑर्डर इशू होगा, राइट? तो मोबिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है before starting the construction, but it also have certain clauses or certain rules written on the contract copy कि मोबिलाइजेशन एडवांस जो आपको मिला है 10%, उसकी रिकवरी किस तरीके से होगी. जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, so there is an statement, recovery shall start upon completion of 20% of the contract value of the work done in RA bills onward, shall be fully recovered on completion of 80% of the work done of the contract. That means what?
कि भाई जो भी मैं तुम्हें 10% पैसा दे रहा हूँ, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है अगर, और 10% उसका क्या हुआ, 1 करोड़, राइट राइट। और 1 करोड़ अगर हुआ, राइट, तो वो 1 करोड़ रुपए कैसे रिकवर होगा, जब आप 20% काम कर लोगे, 20% तक काम के लिए जो भी आरएबल्स आप रेस करोगे उससे कोई भी पैसा डायरेक्ट नहीं होगा। बट जैसे ही 20% काम प्रोजेक्ट का पूरा होता है, उस वैल्यू तक पहुंचता है, तो 20 से 80% के बीच में पूरी रिकवरी भी खत्म कर देनी है। पूरा 1 करोड़ क्लाइंट वापस ले लेगा आरएबल से कट करके। एक लेमैन के तरीके से अगर मैं एग्जांपल देना बोलूं, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका 100 रुपए का बिल गया, तो वो 10 रुपए काट लेगा और बोलेगा कि 90 रुपए लो, ये 10 रुपए रिकवरी थी। ऐसे 10 10 10 10 करते करते वो फाइनली 100 रुपए रिकवर कर लेगा आपके, जब तक कि 80% कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ओके रूपक, यू डोंट नीड टू हैव एनी स्पेसिफिक नॉलेज टू द सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर बेसिक एक्सेल चलाना आता है तो मोर देन इनफ है। अगर वो भी नहीं आता है चलाने आपको, देन यू विल लर्न इन द कोर्स इटसेल्फ, है ना। सो इमरान, देयर इज नो सच स्टैंडर्ड कि बिल इसी इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा, राइट। फॉर्मेट कंपनी अपना अपना बनाती है ना, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होना है। बट द थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिलिंग में आनी चाहिए। अब मान लो बिल में मैं बोल दूं कि यार टोटल अमाउंट कितना है, वही गायब कर दूं, तो दिस इज नॉट अंडर द फॉर्मेट। ये जरूरी चीजें हैं, तो बिल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, राइट। तो हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर होता है, राइट। और वो चीजें आपकी अलग सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर हो जाती हैं, लाइक people will prepare the bill on the Microsoft Excel or maybe into the Word or like these type of softwares only. कोई heavy software यूज नहीं होता है बिलिंग के लिए, right? Certification will be provided to everyone. Okay, जिन लोगों को नहीं आता है, right, एक्सेल, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू विल बी लर्निंग इन ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ। आपको एक्सेल पता चल जाएगा, राइट। तो मोबिलाइजेशन एडवांस जिसका क्वेश्चन था, कि मोबिलाइजेशन एडवांस इज एन स्टेप, राइट। कैंडी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू फाइंडिंग आउट द एस्टिमेशन, बट बहुत कम इंडस्ट्री में, बहुत कम कंपनीज है जो कैंडी का यूज करती हैं, राइट। मोर देन 90%, or maybe I would say like more than 95% of the companies will be using Excel for their billing, right? तो कैंडी सॉफ्टवेयर अभी बहुत दूर की बात है, राइट। अगर आपको SAP से भी हो सकती है, बट SAP का एक अलग से मॉड्यूल है, राइट, उसके हिसाब से हो सकती है। बट दीज थिंग्स आर लाइक दीज आर, इफ यू हैव, ये चीजें अगर आपके ऑफिस में यूज हो रही हैं, राइट, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखनी चाहिए। SAP, कैंडी, ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इनटू द बिजनेस, राइट, तो देखो, आप सॉफ्टवेयर कभी भी सीख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है। बिलिंग करनी कैसे है, राइट, बिलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर तो चला ही लोगे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, राइट। यू शुड नो अबाउट द कोड्स। कोड्स नहीं जानोगे तो बिलिंग कैसे करोगे, या क्वांटिटी एस्टिमेशन करोगे कैसे। तो software, if these softwares are implemented in your organization, then good. You have to need to know SAP, you have to know Candy. But if not, अभी भी 98% कंपनीज क्या चला रही हैं, एक्सेल में, है ना। तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द एक्सेल, क्योंकि आप ज्यादातर काम उसी में कर रहे हो। एक्सबिल्ड आई हैवंट हर्ड अबाउट दैट, सॉरी। अगर वो यूज हो रहा होगा तो आपको देखना पड़ेगा। यू कैन चेक आउट ऑन द इंटरनेट कि किस तरीके से उसके रिव्यूज हैं, क्या है, खुद यूज करके देख सकते हो आप डेमो वर्जन। ड्यूरेशन फॉर द कोर्स विल बी 1 month. Okay, so let's do a small part, एक small सा calculation करते हैं। It's not a self-paced course. These are live classes, right? You'll have live classes for the course. और recordings आपको मिलेंगी बाद में. They will have a certain time duration. जब तक कि आप उन recordings का access कर पाओगे. Okay? And for the more information, you can connect to the Proteni team. Okay.
So I'm skipping the site cleaning part. One more thing I just need to show you guys. Have you all heard about SOR, schedule of rate? Okay. Yeah. So this is schedule of rate document. Okay. ये एक स्टेट पीडब्ल्यूडी का है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट गूगल से जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या पीडब्ल्यूडी की साइट पे चले जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। लाइक अगर मैं अर्थवर्क की बात कर रहा हूँ, तो अर्थवर्क में कौन कौन सा आइटम्स है, डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे पढ़े हुए, वहां पे इनके रेट दिए गए, राइट। अगर आप देखोगे एक्सकवेशन फॉर ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ फाउंडेशन, ट्रेंच एंड ड्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। व्हाट द रेट्स। अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हो और वो एक्सकवेशन ऑल टाइप ऑफ सॉइल में है, ठीक है, तो कितना उसका पैसा मिलेगा पर क्यूबिक मीटर। ऑर्डिनरी रॉक में कर रहा हो तो कितना अमाउंट मिलेगा, हार्ड रॉक में कर रहा हो तो कितना पैसा मिलेगा एक्सकवेशन का। एंड दीज आर लाइक सम डिटेल्स गिवन ओवर हियर। अब द क्वेश्चन इज, डू वी फॉलो द सेम थिंग। क्या हमारी जो बिलिंग होती है, लेट्स सपोज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब आपको बिलिंग होनी है, आपकी बिलिंग होनी है, आपने 1 महीने काम किया, तो क्या सेम यही रेट्स उठा करके इनके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, यस और नो। I just ask the question. Okay. Okay. So the answer is कि आप जो भी बिलिंग आपकी जो होगी, वो हमेशा अप्रूव्ड बीओक्यू से होती है, ना कि इस डॉक्यूमेंट से होगी। दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, कि आप अगर किसी चीज का रेफरेंस लेना चाहते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, मान लो आप चाहते हो कि शटरिंग किसका लगाने का कितना पैसा मिलता है स्टेट पीडब्ल्यूडी से, तो आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट से रेफर कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से रेट एनालिसिस जब आप करते हो तो डीआर डॉक्यूमेंट से एक आइडिया लग जाता है। अगर आपकी बिलिंग की बात करते हैं, तो वो जो भी बीओक्यू आपके पास आया था, हाउ द प्रोसेस वर्क, सी क्लाइंट है, क्लाइंट के पास ड्राइंग चाहिए, क्लाइंट ने ड्राइंग प्रिपेयर की, जो सारी चीजें आप करोगे इस कोर्स में, वही चीजें बता रहा हूँ। यू हैव रेड आउट द ड्राइंग, यू हैव टेकन आउट द एस्टिमेशन, आपने एस्टिमेशन करने के बाद बीओक्यू बनाया, रेट छोड़ दिए, क्वांटिटीज। अब जब टेंडर जाएगा मार्केट में, तो इट विल गो टू मेनी अदर पीपल्स, राइट। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स विल फिल आउट द रेट कि अच्छा मैं इस काम को इतने में करूंगा, इतने में करूंगा, इतने में करूंगा। अब जिसको आपने लास्ट में सिलेक्ट किया, जो पैसा उसने डाला होगा, ठीक है, उसकी बिलिंग उसके हिसाब से होगी। अगर उसने डाल रखा था कि शटरिंग के लिए 80 रुपए लेगा पर स्क्वायर मीटर, सो ऑन समथिंग लाइक दिस, तो उसको उस हिसाब से उसकी बिलिंग होगी। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस डॉक्यूमेंट का यूज क्या है। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके, ऑलराइट, एंड वी डू हैव दिस प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन शीट। ये कहीं और से नहीं आया है, जो आपने डीओ और डॉक्यूमेंट, सॉरी, जो आपने डीओ डॉक्यूमेंट देखा था, वहां पर लेबर कोफिशिएंट्स देखे थे। नाउ इफ आई आस्क यू टू एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी, है ना, और मैं बोलता हूँ कि लेबर निकालो, अब इस काम के लिए कितना लेबर चाहिए होगा, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। दैट्स व्हाई दोस ऑल कोफिशिएंट्स हैव बीन केप्ट आउट हियर, और यहाँ से डायरेक्टली लेट्स सपोज कि आपको मैनुअल एक्सकवेशन करना था, मैनुअल एक्सकवेशन करने की क्वांटिटी नहीं थी, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, आप ये 2 इन्फॉर्मेशन डालोगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेबर्स निकल के आ जाएगा कितना चाहिए। So this is also an important sheet which
be useful for you all, right? And we'll be sharing this while the course. Okay. Okay. तो अब बात करते हैं व्हाट द स्टेप. लेट सपोज कि मुझे कैलकुलेशन करना था. अब मैं एक बार एक्सेल शीट खोल लेता हूँ. Okay. For the site clearing. So when you are doing a quantity estimation, what is important to understand? क्या समझना important है कि इस चीज की एस्टिमेशन करने के लिए पहली बात तो आपको यूनिट देखनी है. ठीक है. व्हाट इज द यूनिट. फिर उसके लिए कौन कौन से डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी. तो साइट क्लीनिंग स्क्वायर मीटर यूनिट दी गई है. ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए होगा. एरिया निकालना है. दैट मींस आई नीड लेंथ एंड आई नीड विड्थ. राइट. अगर मेरे पास ये ड्राइंग शीट है, आई विल कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ. ये मेरे पास सेंटर लाइन है. राइट. अगर मैं ये सारी इफ आई सी ऑल दीज वैल्यूज, इन सब का सम कर दूं यहां से, कर ये लेंथ, ये विड्थ, तो मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा. राइट. सो आई विल गेट द एरिया. सो दिस इज द एरिया व्हिच हैज बीन केप्ट आउट हियर. ये इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर लिखी गई है. बट एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 17.8 is the length, right, and 12.5 is the width. And what is this +1+1? ये +1+1 किस लिए? Any idea? तो देखो, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो राइट, तो आप जहां पर जितना आपका प्लॉट साइज है, मैंने बोल दिया मान लो ये आपका प्लॉट एरिया था, तो सिर्फ इतने में ही थोड़ा साइड क्लीनिंग करते हो. राइट. इससे ज्यादा साइड क्लीनिंग करोगे, यू नीड टू सेट अप द मे बी लाइक लेबर्स के लिए आपको कुछ हटमैन बनाने हो या उनके बनानी, स्टोर बनाना हो, ठीक है, पार्किंग बनानी हो, या भी डंप करोगे वहां पर, कुछ भी करोगे, सो यू नीड लॉट ऑफ सराउंडिंग एज वेल. राइट. तो इन सब चीजों को करने के लिए जो साइट क्लीनिंग की क्वांटिटी होगी, राइट, दैट विल नॉट बी लिमिटेड टू द एरिया जहां पर आपको मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क करना है. उसके अलावा भी आपको कुछ एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ेगा या साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी उसकी. राइट. एंड दैट इज व्हाट वहां पर 1 मीटर एक्स्ट्रा लिखा हुआ था कि अगर आप लेंथ की बात करते हो तो जो एल आया वो आया, बट 1 मीटर एक्स्ट्रा इधर से और 1 मीटर एक्स्ट्रा इधर से. इसी तरीके से विड्थ की अगर आप बात करते हो तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से. ओके. राइट. सो इस तरीके से जा करके वो टोटल क्वांटिटी लिखी हुई थी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्वांटिटी एस्टिमेशन, साइट क्लीनिंग. अब साइट क्लीनिंग ही है यहाँ पर या कुछ और करने की जरूरत है, वो कैसे पता चलेगा कि टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है. अगर आप पेड़ काटते हो तो भी गवर्नमेंट आपको पैसा देती है. यू नो अबाउट दिस और नॉट. When we will be discussing about the quantity estimation part, अब हम इस बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे कि किस हिसाब से पेड़ को काटने का पैसा मिलता है, कितना मिलता है, एंड ऑल एवरीथिंग. ओके. बट अब साइट क्लीनिंग में क्या यही करना था. सरफेस ड्रेसिंग क्या होती है, राइट, उसके बारे में कौन कौन से सिनेरियो होते हैं, कब क्या चीज बोलते हो आप उसको, कितनी डेप्थ तक एक्सकवेशन होता है किस केस में, राइट. ये सारी चीजें हम जब इस डिटेल में बात करेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कब वॉल्यूम निकालना है, कब एरिया निकालना है, डिपेंडिंग ऑन द साइट सिचुएशन. राइट. वेजिटेशन देखना पड़ेगा वहां पर कैसा है. राइट. उसके हिसाब से चीजें काम करेंगी. मड एक्सकवेशन करना है तो ज्यादा पैसा मिलेगा जहां पर कीचड़ या दलदली जैसा इलाका है, राइट, वहां पर. फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सकवेशन. विल बी डूइंग द एक्सकवेशन फॉर फुटिंग. फुटिंग बनानी है आपको, फुटिंग बनानी है तो एक्सकवेशन करना है. अब आपको ये समझना जरूरी है कि इस टेम्पलेट में when you are doing estimation, you are creating this kind of template, right, what are the different columns you should consider. अगर मैं बात करूं एक्सकवेशन करना है, किसका करना है, फुटिंग जो बनाई है आपने उसका करना है, राइट. अब नंबर ऑफ आइटम्स कहां से आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द टोटल फाउंडेशंस. कितने, मतलब आपके जो फुटिंग्स हैं, F1 फुटिंग है 16, F2 फुटिंग है 8, ये कहां से निकल के आ रही है, इस ड्राइंग से. इफ यू सी दीज फुटिंग्स, राइट, कुछ यहाँ पर F1 है, कुछ F2 है, ये नाम लिखे हुए हैं ऊपर, राइट.
So you have to count them कितने F1 है कितने F, और नीचे यहाँ पर F1 F2 के डायमेंशंस दिए हुए हैं, फुटिंग साइज ये देखो, राइट। तो अब यहाँ पर यू हैव टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स आइटम, एक का निकालोगे मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर से, तो ये क्वांटिटी निकली है, देखो कैसे निकली हुई है। यू हैव लेंथ, यू हैव विड्थ एंड यू हैव हाइट एंड यू हैव टोटल नंबर ऑफ आइटम, राइट। So this is how the total quantity is coming. But here the thing is to observe, numbers में कुछ नहीं है, सिंपल है, राइट। हाइट में कुछ नहीं है, सिंपल है। विड्थ में 0.1 ऐड है, यहाँ पे भी 0.1 ऐड है, एंड दैट इज व्हाट जो आपने डिस्कस किया था कि जब आप एक्सकवेशन करते हो तो आपको सिर्फ जो फुटिंग का साइज है, फुटिंग का साइज क्या है यहाँ पर, F1 फुटिंग का 1800 बाई 1800, बट यहाँ पर तो 2000 लिखा हुआ है, मतलब 2 मीटर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2000, राइट। तो व्हाई दिस इज, बिकॉज वी हैव टेकन 100 एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। अब जरूरी नहीं कि हर बार 100 mm ही लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो फुटिंग है उसकी डेप्थ कितनी, डेप्थ के हिसाब से आपको आप डिसाइड करोगे कितना एक्स्ट्रा स्पेस लीव करना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कारण से ये 1800 की बजाय क्या हो गया 2000, तो हमको लेंथ और विड्थ कितनी कंसिडर करनी पड़ी 2, मेक सेंस। अब इसके बाद आपने सैंड फिलिंग की, तो कितनी कितनी हाइट तक सैंड फिलिंग की है, बस वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट लेके आ सकते हो आप यहाँ से, सेम चीजें सारी। तो इससे आपने टाइम भी बचा लिया, राइट। जब आपने एस्टिमेशन किया यू हैव सेव योर लॉट ऑफ टाइम एज वेल, सैंड फिलिंग के लिए, पीसीसी के लिए, फिर फुटिंग कंक्रीट के लिए करोगे। तो व्हाट इज द कंक्रीट ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, टेल मी। What is the formula for calculating the volume you can say, क्योंकि कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी जब आप वॉल्यूम निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। See, for the rectangular part, volume is simple. L multiplied by W multiplied by H, or you can say D. What is for the trapezoidal part? Okay, so V1 and V2, you have written parts, right? For trapezoidal and okay. So see, another approach, if I say like V is equals to V1 plus V2, or I say V rectangular plus V trapezoidal. So rectangular, you know, this is the formula, simple. And for the VT, trapezoidal part is what? V by 3 A1 plus A2 plus under root of A1 and A2. This is the simple formula. And what is D? D is this 2, D2. Trapezoidal part ki depth divided by 3 A1 plus A2 plus under root of A1 and A2. And A1 and A2 is what? Let's suppose you are considering A1 to this down portion and A2 to this part, top portion. You can interchange this. इसको A1 ले लो या इसको A1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, right?
क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है अंदर. ओके, so you can consider anything. So this is a formula, right, to calculate the volume. Make sense? This is how you'll calculate the total quantity of concrete for this. Similarly, you'll go ahead and calculate the shuttering portion. Okay, and this is how the things goes on, right? तो बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो आपको समझनी जरूरी है, and which will be covering on when will be, you know, when you will be the part of the course, I would say, right? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखेंगे. So basically, why this course has been designed? This course has been designed for the people like who are new to the construction industry, or even if you are in a side position, side engineer की position में आप और आप explore करना चाह रहे हो, quantity estimation में reach करना चाह रहे हो, तो like overall learning is there, right? आप start करते हो survey से, layout भी सीखते हो, quantity estimation सीखते हो, bar bending schedule सीखते हो, rate analysis का आप जानते हो कैसे rate analysis करना है, billing भी जानते हो. In this one course, you get an idea about each and everything. So that's how the course has been designed, कि आपको पूरी construction process start to the end देखने को मिले, right? So that you get lot of learning within one course only. Okay, so this is all about the course content, right? I've told you like क्या क्या cover करेंगे, क्या क्या आप सीखोगे. If you have any other questions related to the things which I have discussed today, you can drop your queries. Okay. How to take out the vehicle required with cost. That means like किस चीज की बात कर रहे हैं आप कि अगर आपने रेट एनालिसिस किया तो उसमें व्हीकल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये चीज इसकी बात कर रहे हो आप इमरान, राइट? तो किस मतलब किस आइटम के लिए, मैं पूछूं किस काम के लिए कर रहा हूँ, लाइक व्हाट इज द वर्क? हाईवे, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी लेयर का मटेरियल जा रहा है, डीबीएम जा रही है, कुछ भी जा रहा है, ठीक है, कितना क्वांटिटी लगेगा, जो भी आपके पास वॉल्यूम है कितना क्वांटिटी लगेगा, फिर एक जो आपकी गाड़ी है उसमें कितना क्वांटिटी जाती है, एंड सिमिलरली कितना आपके राउंड लगेंगे. सिंपल सा कैलकुलेशन है, इट्स नॉट अ टफ थिंग, राइट? तो लगभग उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे. सो दिस इज द टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द यू नो डीबीएम, आई वुड से. ओके, लेट्स सपोज कि आपके पास निकल के आया कि 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी चाहिए आपको, है ना, 100 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी चाहिए. अब एक गाड़ी में कितना जाता है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतने गाड़ी का आइटम चाहिए. अभी इतने गाड़ी का आइटम चाहिए तो आना जाना लेके लेके गए आप और व्हीकल वापस लौट के आया एंड सो ऑन, राइट? तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे कितना चाहिए होगा, और फिर जब आप करोगे तो धीरे धीरे आप एक थंब रूल डिजाइन कर लोगे कि अच्छा लगभग इतना आता है. तो यू कैन कंसीडर दैट पार्ट की ओके ओवरऑल कॉस्ट का लगभग 2% पेट्रोल का खर्चा आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 3 4% जितना भी आता हो, राइट? तो दैट विल बी द ओवरऑल परसेंटेज, और उसके बाद आप उतना ही किया करोगे. Okay, any other question from anyone, or we can close the session? Okay, thank you very much guys, thank you everyone for joining the demo session, and I hope like you'll join the course and you'll learn a lot of things. See you during the course. Thank you very much. Good night, goodbye. Thank you, learners, and thank you, expert, for joining for today's session. The session will be concluded now. The link to join the session has already been dropped in the chat box. Kindly register for the course using the link there. So thank you, everyone. I'll be closing the meeting in a few minutes. Till then, everyone, you can fill the forms as per your wish. Thank you, everyone.
Hello. Hello. Hello, Rupak sir. Give me your contact number. Yes. Hello, Rupak sir. Yes, sir. बोलिए. Sir, give me your contact number, sir. I'm sorry, sir. We are not allowed to do that. If you want, you can connect through the course. Then we'll provide you the other details. Sir, Rupak sir. Unmute yourself. Hello. Sir, good evening, sir. Rupak sir. Yes, sir. Good evening. Sir, send me your contact number, sir. No, I'm not sure. So you can. Hello. If there are no questions regarding the course, then I'll be closing the session now. So, Sir, company, where is it located, sir? Hello. sir, regarding the vacancy in other companies will be provided through another group, but you can be a part of that after becoming a member of ProTree. So for that, you need to enroll in one of the courses. But I can work. But I am interested in site engineer, sir. Yes, sir. Regarding the different posts, site engineer, quality estimation, other different designations are provided there if any opportunity arises. Like if there is any vacancy in any company regarding site engineer or any other post, the opportunities are provided there and you can connect with the company as per the details which are provided. But for that, you need to be a part of ProTrainees team. So you need to enroll in one of the courses so that you can get the details. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Are there any other questions? No, sir. Sir, where is the office, sir? Excuse me. Sir, where is the office? Where is the office, sir? As in Where is- what you're asking Where about is the the office? office? For which thing are you asking about the office? Hello. So I'll be closing the session now. Thank you everyone for joining. Good night, everyone.